درمیان میں اس کو اٹھا کر کرنا پڑے گا۔ الرحمن الرحیم، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہماری آج کی اس پریس کانفرنس کو دکھانے کے لیے اور اس کی کوریج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری بات جو میں سب سے اہم آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پارا چنار کا مسئلہ یعنی کروم ایجنسی کا جو مسئلہ ہے اس پر کراچی میں اور کچھ شہروں میں دھرنے بیٹھے اور یہ بات بتائی گئی کہ کرم میں ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے دھرنے کا جو پہلا مقصد وہ یہ بتانا تھا کہ کرم میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اور ظالم ہونے کے بعد اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کس نے کی۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ کرم جو ایجنسی ہے اس میں 3 سب ڈویژن ہیں، ایک لوور کرم ہے، ایک سینٹرل کرم ہے اور ایک اپر کرم ہے۔ ان میں 2 جو سب ڈویژن ہے اس میں اہل سنت کی اکثریت ہے اور ایک میں اہل تشیع ہے جسے اپر کرم کہا جاتا ہے۔ ان 2 سب ڈویژنوں میں 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے، لیکن اپر کرم میں آج تک کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ دوسری بات کہ پورے کرم ایجنسی میں کوئی ایک گاؤں یا دیہات ایسا نہیں ہے جس میں کسی اہل تشیع کو بے دخل کیا گیا ہو، یعنی انہیں اس گاؤں سے نکال دیا گیا ہو، جبکہ کرم ایجنسی میں 56 گاؤں اہل سنت کے ایسے ہیں جن میں سے بعض کو بے دخل کیا گیا، وہ آج تک اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکے۔ 2007 میں یہ حادثہ ہوا اور وہ لوگ آج تک ملک کے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں، وہ واپس نہیں جا سکے۔ اس کے بعد ایک بشیرہ ایک گاؤں ہے، اس کے ارد گرد پوری آبادی اہل تشیع کی ہے۔ انہوں نے اس گاؤں پر چڑھائی کی، لشکر کشی کی اور وہاں جا کر اعلان کیے، پہلے سوشل میڈیا پر سب موجود ہے کہ ہم یہاں پر علم لگائیں گے، ہم یہاں پر یہ کریں گے، ہم اسے فتح کریں گے، اور بالآخر وہ گئے اور جا کر انہوں نے وہاں جو کچھ بوشیرہ میں کیا، وہاں کے مقامی لوگ جو وہاں موجود تھے اور جنہوں نے اپنا دفاع کیا، اس سے یہ جنگ مزید بڑھی۔ اس کے بعد ایک گاڑی جو جا رہی تھی اس میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، اس گاڑی پر حملہ ہوا، ان بچوں کو اور عورتوں کو مارا گیا۔ اور میں یہ بات اپنے سے نہیں کہہ رہا، کرم کے ایک ذمہ دار نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا صاحب ہم یہ بات بتا نہیں سکتے کہ ہوا کیا ہے۔ ہماری عورتوں کو اتار کر صرف گولیاں نہیں ماری، ان کے سینوں میں خنجر مارے ہیں اور بچوں کو وہاں سے اغوا کیا ہے، اور ایک بچے کی تصویریں دے دے کر بعد میں اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی نہ بچوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا اور نہ بوڑھوں کو چھوڑا۔ یہ جنگی لحاظ سے یہ جرم ہے اور ہر معذب قوم میں جرم ہے، اس میں کوئی مسلم اور کافر کی بات نہیں ہے۔ ہر معذب قوم میں بچوں پر، عورتوں پر اور بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا،
لیکن وہاں لحاظ نہیں کیا گیا، یعنی انسانیت کے خلاف وہاں کارروائیاں کی گئی، اور کارروائیاں کرنے کے بعد پھر یہاں بیٹھ کر مظلوم بن گئے اور رونے لگ گئے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا اور اب مظلومین کے ساتھ میں حیران ہوں۔ میں آج آپ کے توسط سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ صحافی حضرات ایک ٹیم بنائیں، اور ٹیم بنا کر یہ کرم کا دورہ کریں، اور اگر ہمیں کہیں تو ہم آپ کا انتظام کریں، آپ کرم کا دورہ کریں اور وہاں ان حقائق کو معلوم کریں کہ اصل حقائق کیا ہیں اور یہاں کیا بتائے جا رہے ہیں۔ جب یہ ظلم ہو گیا تو ظاہر تھا اس کا رد عمل آنا ہے، پھر ایک کانوائی پر حملہ ہوا اور ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے، گاڑیوں پر حملہ ہو اور راستوں پر مسافروں پر حملہ ہو۔ اس حملے کے نتیجے میں دوبارہ پھر انہوں نے ایک لشکر کشی کی، اور اس میں ایک گاؤں جسے بگن کہا جاتا ہے، اس بگن گاؤں میں یہ داخل ہوئے، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں دیکھیں۔ میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس درد کا اظہار کر رہا ہوں کہ بگن شہر کی تصویریں صحافی نہیں بتا رہے، بگن شہر میں ہونے والے واقعات، بگن شہر میں داخل ہوئے، مکان جلا دیے، سامان لوٹ لیا، دکانوں کو جلا دیا اور گھروں کو جلا دیا، بچوں کو ذبح کر دیا، عورتوں کو مارا۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں، چونکہ میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، ان بزرگوں نے اور مشران نے ہمیں کہا کہ جناب یہاں پر ہم آپ کو وہ بات نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ہماری پشتو روایات اور ثقافت کے خلاف ہے۔ انہوں نے جو کچھ ہمارے عورتوں کے ساتھ کیا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم وہ نقشہ بتائیں تو ملک میں آگ لگ جائے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، بگن کے اندر مسجدیں جلائی گئی، قرآن پاک جلائے گئے۔ آپ حیران ہوں گے، اگر دنیا کے کسی غیر مسلم ملک میں قرآن پاک جلائے جائیں تو پورا ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے۔ قرآن پاک جلائے گئے۔ یہ واویلا بچانے والے اور رونے والوں سے میں سوال کرتا ہوں، یہ قرآن پاک جلے ہوئے اوراق تمہیں نظر نہیں آئے؟ ان لوگوں نے وہ قرآن پاک کے اوراق دکھائے، پورے قرآن جلے، مسجدیں جل گئی، وہاں آذان کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سارا ظلم ہوا، اور ہونے کے بعد پھر انہوں نے واویلا کیا کہ اب ہم جو ہے وہ مظلوم ہیں اور ہمیں مارا گیا ہے۔ یہ کیوں کیا؟ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دھرنے شروع کیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں کی اپیکس کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا تمام مشران کی موجودگی میں، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ کرم سے بلا تفریق تمام اسلحہ لیا جائے گا اور کرم کا فوجی آپریشن ہوگا۔ جب یہ بات آئی تو وہ لوگ جن کے پاس اسلحہ ہے، اور اسلحہ صرف عام اسلحہ نہیں ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں، مشران ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو حکومت کے پاس نہیں ہے، اور جو ہماری فوج کے پاس ایسا اسلحے کا جو ہے وہ تصور نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا ہم نے ایک جہاز نہیں دیکھا اور ایک ٹینک نہیں دیکھا، باقی کوئی اسلحہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کرم میں موجود نہ ہو۔ ایک سادہ سا مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرم کا فوجی آپریشن کیا جائے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بھاگتے کیوں ہو؟ شور کیوں کرتے ہو؟ روڈ پر آ کر کیوں چیختے ہو؟ واویلا کیوں مچاتے ہو؟ آپریشن کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اس لیے کہ ایرانی اسلحہ چھپانا چاہتے ہو۔ اس ظلم کی کہانیوں کو چھپانے کے لیے یہاں دھرنے دیے گئے۔ ہم جواب میں دھرنوں میں کیوں آئے؟ ہم نے ایک تو یہ بات واضح کرنا چاہیے کہ ہم حقائق بتانا چاہتے ہیں۔ دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے، انہیں غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں، جھوٹا واویلا کیا جا رہا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مار کر، ظلم کر کے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کر کے، بربریت کا مظاہرہ کر کے، پورا گاؤں جلا کے، قرآن پاک جلا کے، اور ساتھ ساتھ پوری بستی کو ملیا میٹ کر کے۔ آج بھی بگن کے لوگ جن کے گھر نہیں ہیں، ایک ایک گھر میں 10 15 گھرانے رہ رہے ہیں، وہ رہ نہیں سکتے۔ ایک اسکول کے اندر 400 کے قریب لوگ رہ رہے جن کے پاس بستر نہیں ہے، ان کے گھر جلے ہوئے، وہ کہاں جائیں؟ آج جب معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے اندر بگن کے لوگوں کو اگر بیچ سے نکالا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ معاہدہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکے گا۔ اس سب کے باوجود ہم نے پھر یہاں کراچی میں، ہم باہر کیوں آئے؟ سمجھنا، ہم کراچی بچانے کے لیے آئے، ہم شہر بچانے کے لیے آئے۔ یہاں تو دھرنے بیٹھ گئے، نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے یہاں جو دنیا سرمایہ کاری کرنی آ رہی ہے وہ رک رہی ہے۔ یہاں پورٹ ہے، پورٹ قاسم ہے، پورٹ کراچی ہے، اس کا راستہ بند ہو رہا ہے۔ یہاں پر انڈسٹریل ایریا ہے، اس ایریے کے اندر لوگ مزدوری کے لیے جا سکتے۔ یہاں پر تاجر ہیں، تاجروں کی دکانیں بند ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں
मेरा सवाल है, मैं हक रखता हूँ, मैं पूछता हूँ, मुझे जवाब देना मिलना चाहिए कि वाकया कुरम में हुआ, कराची वालों ने क्या किया है? तुमने बाजार यहाँ बंद क्यों किए, रोड यहाँ बंद क्यों किए? यहाँ का नुकसान मैं समझता हूँ, ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा है, मुल्क में ऐसे हालात पैदा करना जैसे शाम में पैदा हुए, जैसे इराक में पैदा हुए, जैसे लबनान में पैदा हुए। जितने इस्लामी ममालिक हैं उनमें ये हालात पैदा किए, उन हालात को पाकिस्तान में पैदा करना चाहते थे। और मैं ये बात भी आपकी मीडिया की तवज्जुह से बड़ी बरमला बताना चाहूँगा। मैं समझता हूँ मेरे इल्म में है, मेरी इन बातों के बताने के बाद पहले भी मेरा नाम सर फहरिस्त है, फिर भी रहेगा, लेकिन मैं बरमला शहर कराची के इन लोगों की हमदर्दी के तौर पे कहना चाहता हूँ, ये क्या किया गया है? ये रेलसेल की गई है, ये शाम की प्रैक्टिस की गई है, ये इराक की प्रैक्टिस को दोहराया गया है, मुल्क में बदअमनी फैलाने की एक कोशिश की गई है। और सिर्फ बात यहाँ खत्म नहीं हुई, वहां पर बगन के वाकयात के बाद फौजी चौकी जलाई गई, पाकिस्तान का परचम उतारा गया। आप जानते हैं कराची के साथी MKM जैसी जमात ने जब पाकिस्तान का परचम गिराकर पाकिस्तान मुर्दाबाद उसमें कुछ लोगों ने कहा था, तो उसके साथ यहाँ क्या हुआ? PTI ने 9 मई को जो वाकयात किए उसके साथ क्या हुआ? ये कहाँ के हैं? इनकी पुष्ट पर कौन है? इन्हें कौन चला रहा है? पाकिस्तान का परचम सिर्फ उतारा नहीं, पांव तले रोंद दिया, सिर्फ रोंदा नहीं, आग लगा दी, पाकिस्तान के परचम को आग लगा दी, पाकिस्तान के परचम को जला दिया, पाकिस्तान के परचम को पांव तले रोंद दिया। जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए हजारों लोगों ने जाने दी थी, ये शुहदा का परचम है। ये हमारे मुल्क के बानियान पाकिस्तान ने इस परचम को बुलंद किया था। इस परचम को जलाना पाकिस्तान की तौहीन है, पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, और ये गद्दारी उन्होंने की है। बात यही खत्म नहीं हुई, आगे चलकर उन्होंने उस परचम की जगह कलअदम जमात ज़ैनिबियून के परचम लगाए। ज़ैनिबियून के परचम क्या है? ज़ैनिबियून यहाँ की जमात नहीं है, ये शाम की बनी हुई जमात है, ये शाम की बनी हुई जमात है। वो जमात पाकिस्तान में उसका परचम लगाया जा रहा है, यानी गैर मुल्की जमात का परचम पाकिस्तान में लगाया जा रहा है, पाकिस्तान के परचम को गिराया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? ये मुल्क दुश्मनी नहीं है तो क्या है? ये गैर मुल्की एजेंट नहीं है तो और क्या है? ये किसी और के यहाँ भेजे हुए किसी और प्रॉक्सी जंग नहीं लड़ रहे तो और क्या कर रहे हैं? लिहाजा परचम को जलाने के बाद एक और बड़ा अजीब वाकया, जिसे शायद मीडिया में किसी ने नहीं दिखाया, कि एक 70 साल बुजुर्ग, आम बुजुर्ग नहीं था, कोई मौलवी मस्जिद का इमाम नहीं था, डॉक्टर था, जिसने 70 साल वहां की आवाम की बिला तफरीक खिदमत की। उसने नहीं देखा कि कोई मुसलमान है या कोई शिया है, उसने ये नहीं देखा कि कोई मुसलमान है या कोई शिया है, उसने बिला तफरीक खिदमत की, मुसलमानों की भी की और शियों की भी की, और सबको दवाई फराम की, सबके घरों तक वो पहुंचा। उसे सिर्फ मारा नहीं, उसे गोली नहीं मारी, उसे सिर्फ गोली नहीं मारी, उसे सिर्फ ज़िबानी किया, उसके सर को तन से ऐसे ही जुदा किया जैसे करबला में हुआ था। ये वाकया दोहराया इन्होंने, दुनिया को हकीकत बताई, करबला में सब कुछ करने वाला कौन था? सर काटा, उसका सर काट कर सिर्फ रक्कानी चौक पे लगा दिया। मेरे साथी भाइयों, मेरा दर्द दिल समझो, पाकिस्तान के लोगों मेरा दर्द दिल समझो, सियासी लोगों मेरा दर्द दिल समझो। तुम में से कोई नहीं बोला, कोई मैदान में नहीं आया, ये सब कुछ क्या हो रहा है? उसको सर को काट कर किसी आम जगह पे नहीं रखा, फौज की चौकी पे रखा, फौज की चौकी पे रखा, रियासती इदारे की चौकी पे रख दिया। क्या पैगाम दुनिया को दिया? हमारी फौज कमजोर है, हमारी रियासत कमजोर है। क्या पैगाम दिया? जब किसी सुन्नी का सर किसी फौजी चौकी पे लटक रहा होगा तो क्या मुसलमान के दिल में फौज की मोहब्बत रहेगी? ये मुसलमानों को और फौज को लड़ाने की साजिश थी ताकि ये लड़ जाएं, मुल्क में इंतशार हो। और मैं आपके तवज्जुह से एक बात और बताना चाहता हूँ, बगन गांवों पर हमला, ये सबक देना था कि मुल्क में दुनिया भर में ऐसे हमले हों। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बगन में मुसलमानों की तादाद कम है और अहले तशय्युअ की ज्यादा है, तो क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है? क्या फिर अहले सुन्नत किसी गांव पर चढ़ दौड़े? क्या किसी के घर को आग लगाएं? क्या सर काटे और चौकियों पर रखें?
मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ अहले सुन्नत के तमाम मकातब फिक्र को, जिन्होंने तदब्बुर, तहम्मुल, हालात का जायजा लिया, सब्र का मुजाहरा किया, अपनी जंग वहां लड़ी। और मैं एक बात और भी आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वो बड़ी अहम बात है। MWM कराची में धरना दे रही है। MWM खैबर पख्तूनख्वा में धरना क्यों नहीं दे रही? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा है। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा है। कराची लवारिस है, इसलिए कि यहाँ की माइशत का नुकसान मुल्क को हो रहा है। पाकिस्तान का 90% बजट क्या पाकिस्तान कराची के पोर्ट से नहीं जा रहा? क्या कराची के ताजिरों ने हमेशा मुल्क भर में होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ क्या उन्होंने मुल्क भर में हमेशा ताउन नहीं किया? क्या कराची के ताजिरों ने धरने में, कराची के ताजिरों ने जनाब मुल्क भर की सैलाबों में, तूफानों में, आंधियों में क्या मुल्क की खिदमत नहीं की? क्या यहाँ से गिलगित तक इन्होंने अपने ट्रक और सामान नहीं भेजे? इस मईशत को नुकसान, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही थी। साथ साथ अगली बात समझिए, मैं बड़ा हैरान हूँ, कमिश्नर कराची उनके धरने में जाकर दौरा करके मिन्नत करता है उठ जाइए, वो नहीं उठते। एडिशनल IG अपना बयान देता है कि जनाब कल तक उठा दिया जाएगा, उसे वजाहत करनी पड़ती है। ये क्या है? कमिश्नर कराची आप मिन्नतें करने के लिए, एडिशनल चीफ पुलिस आप लोगों से मिन्नतें करने के लिए, आप कानून नाफिज करने के लिए। लेकिन मैं फिर इन्हें सलाम पेश करूंगा जिन्हें बर वक्त मौके से आकर इन्हें उठाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? क्या पुलिस मोबाइलों पर हमला नहीं हुआ? क्या पुलिस को लोग जख्मी नहीं हुए? क्या फायरिंग नहीं की गई? क्या जवाबी हमले नहीं हुए? क्या इन्हें पत्थर नहीं मारे गए? क्या आग नहीं जलाई गई? और साफी हजरात, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, हम अमन से धरने देकर बैठे हैं, आप हमारा तो पूछते नहीं हो। आप भी तो वहीं जाते हो जहाँ मोटरसाइकिल को आग लगी हो, आप भी तो वही दिखाते हो जहाँ गाड़ी जल रही हो, आप भी तो वही दिखाते हो जहाँ पर पुलिस भाग रही हो, और आप ये दिखाते हो ये कितने लोग दिनों से धरना दिए बैठे। इसलिए हमने फैसला किया था कि हम कराची में धरना देंगे इस जवाब में कि ये धरने उठाए जाएं और इनके लिए शहर कराची के रोड क्लियर किए जाएं। हम चाहते हम रोडों पर बैठ जाते। हमारी बात समझना, हमारी मोहब्बत और हमदर्दी और बेवतनी समझना। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हक़ाइक़ बता रहा हूँ। 24 घंटे का हमने टाइम दिया। मैंने अपनी घड़ी देखकर कहा था 3 बज रहे हैं। 3 बजे लोग वहां पहुंचे। मैं इस्लामाबाद में था। कराची में 3 बजे लोग 60 मकामात पर पहुंचे। मैंने उनसे कहा रोड ब्लॉक मत करना। इंतजामिया ने कहा हमें मौका दो। हमने कहा घंटा और ले लो। हमने रोड बंद नहीं किए। ठीक 4 बजे के बाद हम रोडों पर आए, रोड जाम हो गए। मैं समझता था मजदूर वापस अपने घर जा रहा है, मैं समझता था मुलाजिम अपने बच्चों के पास जा रहा है, मैं समझता था नौकरी करने वाला अब अपने बच्चों के पास जाएगा, वो उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने अगर रोड ब्लॉक कर दिया वो रह जाएगा। मैंने घंटे बाद अपने लोगों को पैगाम दिया, ट्रैफिक खोल दी जाए, एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया जाए, गाड़ियों को जाने दी जाए। आप किनारों में बैठ जाएं, आप एहतजाज करें। आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है ना, आप करवा लीजिए, मगर आप रोड मत रोके। हमारे 3 दिन के धरनों में कोई रोड ब्लॉक नहीं होने दिया, सड़क ब्लॉक नहीं होने दी, गाड़ियां नहीं रुकने दी, एम्बुलेंस नहीं रुकने दी। उनने कितने दिनों से जो है वो रोड ब्लॉक किए थे और उठने को तैयार नहीं थे। और फिर उन्होंने धमकियां दी। क्या धमकियां हैं? हम एयरपोर्ट्स बंद कर देंगे, हम हवाई जहाज नहीं उड़ने देंगे, हम रोड पे गाड़ी नहीं चलने देंगे। जैसे लगता था इनके बगैर इस शहर में बसता ही कोई नहीं है। मैं आज ये बात भी आपके तवस्सुस से कहना चाहता हूँ, शहर कराची में किसी को बदमाशी की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर कोई ये समझता है वो धरने देकर, कोई ये समझता है वो यहाँ पर जो है वो धरने लगाकर, कोई ये समझता है वो धमकियां देकर, कोई ये समझता है वो यरगमाल बना लेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने आज के होने वाले ये जो धरने दिए थे, हम इन धरनों को मुअख्खर कर रहे हैं। मुल्क के लिए, कराची के लिए, अपने लोगों के लिए। मैंने मुअख्खर का लफ्ज इसलिए कहा, अगर किसी और ने धरने देने की कोशिश की, अगर किसी और ने
धरने देने की कोशिश की तो हम दोबारा अपने उस ऐलान पर वापस आ जाएंगे कि हम कराची के 60 मकामात पर धरना देंगे। हम किसी को इस शहर समेत मुल्क भर में बदमाशी नहीं करने देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहने देंगे। अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। अपनी फोर्सेस पर हमला नहीं करने देंगे। हम इस शहर में बदअमनी फैलाने वालों का रास्ता रोकेंगे। और उसके साथ साथ मैं कराची शहर के उन हक दिल अजीज नौजवानों को शाबाश देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज पर लब्बैक कहा और वो बाहर आए और उन्होंने बाहर आकर यहाँ एक माहौल बनाया। अवामी धरना हमने दिया, उन्होंने हमारी बात को माना। उन्होंने किसी रोड और चौक को ब्लॉक नहीं किया, बल्कि वो बैठकर भरपूर अंदाज से अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाते रहे। हम इस मुल्क में जो है वो हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, इस मुल्क में अमन से रहना चाहते हैं। इस मुल्क में मुस्लिम भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं, अक़लियतें भी हैं, अक्सरियतें भी हैं। अक़लियतियों का अक्सरियत को लिहाज रखना चाहिए और अक़लियत को भी अक्सरियत का लिहाज रखना चाहिए। कोई ऐसा काम न करें जिससे अक्सरियत में इश्तिहाल फैले। इस मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए, इस मुल्क को तरक्की मिलनी चाहिए, मुल्क का कारोबार मुस्तहकम होना चाहिए, यहाँ के ताजिर को सहूलत मिलनी चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुर्बानी हमें देनी पड़ी वो हम देंगे। या मजदूर दिन में मजदूरी करता है, शाम में अपने घर में जाके बच्चों का पेट पालता है। इन धरनों की वजह से जो कुछ हो रहा है इसे खत्म होना चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से आज मुतालबा करना चाहता हूँ और ऐलान करना चाहता हूँ कि कराची से धरना सिस्टम को खत्म किया जाए। कराची से धरना सिस्टम को खत्म किया जाए। चौकों और चौराहों को सियासी और मजहबी मफादात के लिए बंद करने पर पाबंदी लगाई जाए। अगर किसी ने एहतजाज करना है उसकी एहतजाज की जगह मुतय्यन की जाए, जाकर वो वहाँ एहतजाज करे ताकि मुल्क की डूबती हुई माईशत को सहारा मिल सके और हमारा मुल्क मजबूत हो सके। ये किरदार हम सब ने निभाना है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ताजरों से भी मिलूंगा और मिलकर हम एक भरपूर लाए अमल बनाएंगे जिसके जरिए से ये आए दिन के जुलूस और धरने जिनसे ट्रैफिक मुतासिर हो और दुकानें बंद की जाए, इसे बंद होना चाहिए। इस सिस्टम को बंद होना चाहिए, इस शरारत को बंद होना चाहिए। जुलूस हम भी निकालते हैं, कराची के ताजिर गवाह है, दुकानें खुली होती हैं, बाजार खुले होते हैं और रोड पे ट्रैफिक एक तरफ चल रहा होता है। हम परेशानी नहीं देते। हम 22 रजबुल मुरज्जब को भी इंशाअल्लाह उसी तर्ज का जुलूस जिसमें दुकानें भी खुली होंगी, बाजार भी खुले होंगे, ट्रैफिक भी चल रही होगी, हम फिर आकर बताएंगे। और इसलिए आएंगे तुम्हें बताने के लिए कि अगर मुहब्बे वतन हो तो ये सबक तुम भी लो। दुनिया पर जुल्म करके अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करने वालों का रास्ता हमने रोका था। आइंदा अगर उन्होंने कोशिश की इंशाअल्लाह हम फिर भी रोकेंगे। असल हकायक मीडिया को, मीडिया के जिम्मेदारों को, हमारे एंकर्स को, हमारे मीडिया के मालिकान को असल हकायक बताने चाहिए। वहाँ पर क्या है उसका प्रेशर होना चाहिए। और एक बात और कहूँ, वो जो मुआहिदा हुआ है उस पर साइन हुए हैं। मैं समझता हूँ उस इलाके के स्टेक होल्डर जो लोग हैं और जो बुनियादी और मैदानी लोग हैं जो बहाजों पर मौजूद हैं, उनके अभी तक साइन नहीं हुए। इसका मतलब है कुछ लोगों ने साइन किए हैं और वो ये कहते हैं कि जो मरी मुआहिदा है और जो एपेक्स कमेटी का मुत्तफिका फैसला है उसके मुताबिक सबसे पहले असलिया लेना चाहिए और ऑपरेशन करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम रियासत के लोगों से, अगर लोगों के पास असला भी हो और हर चीज मौजूद हो तो क्या अमन हो सकता है? लोगों के कत्ल भी हुए हो, क्या अमन हो सकता है? औरतों के सीनों में खंजर भी मारे गए हो, क्या अमन हो सकता है? जिसके बच्चे मार दिए गए, क्या घर में चैन से बैठ सकता है? उसका एक ही इलाज है और वो इलाज है कि पूरे का पूरा जो है वो असलिया लिया जाए और ऑपरेशन किया जाए। मैं बड़ा बरमला कह रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप मुसलमानों से असलिया न लें। मैं कहता हूँ वहाँ अहले तशय्युअ से भी लें और मुसलमानों से भी लें, दोनों से असलिया लेकर कुरम को असले से पाक किया जाए ताकि मुस्तकिल तौर पर इस जड़ों को ख़त्म किया जाए जिसकी वजह से वहाँ
फसाद होता है। और अगर मुआहिदा ऐसा किया गया जिसकी वजह से असला न लिया गया या ये कहा गया कि असला अपने बड़ों के पास जमा करवाएं, तो हम सबूत से दिखा सकते हैं उनके बड़ों ने तो सब कुछ करवाया है, उनके घरों में डब है। और मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ, ये जो धरने दिए गए, ये जो वक़्त लिया गया, अब भी तो वो बात मान रहे हैं, पहले क्यों नहीं मानी? मैं ये कहता हूँ इस दौरान उनने असला डंप किया, असला छुपाया, असले को कहीं रखा, और वो किसके पास है? वहाँ के उनके जितने बड़े मशरान कहलाते हैं, उन्होंने इस असले को छुपाया हुआ है। ये मौके पर फिर निकलेगा और फोर्सेस पर भी चलेगा, अवाम पर भी चलेगा। हम एक ज़माने से ये बात कहते चले आ रहे थे, बैरूनी मुदाखलत को पाकिस्तान में रोका जाए। आज ईरान की मुदाखलत सबके सामने है, और मैं एक नारा आपको दे रहा हूँ, दुनिया भर के इस्लामी ममालिक में जहाँ दहशत गर्दी है, उसके पीछे ईरानी गुंडागर्दी है। जहाँ दुनिया के मुस्लिम ममालिक में दहशत गर्दी है, इराक है, शाम है, लबनान है, या दुनिया के और मुल्क हैं, पाकिस्तान समेत, उसके पीछे ईरानी दहशत गर्दी है, गुंडागर्दी है। हम पर होने वाले वाक़यात, शेखुल इस्लाम साहब पर होने वाला वाक़या, डॉक्टर आदिल खान साहब शहीद का वाक़या, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शहनशाह का वाक़या, इन सब में सरकारी रिपोर्टें पढ़ लीजिए, वाज़े तौर पे कहा गया है ईरान से लोग आए थे, ईरान से आए थे, ईरान से आने वालों ने ये किया था, ईरान से तनख्वाहें मिलती हैं, ट्रेनिंग सेंटर वहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ ये ट्रेनिंग सेंटर बंद क्यों नहीं होते? और गिलगित और पारा चिनार जो ईरानी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जिसमें इनके उलमा ने खड़े होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, मेरा मुतालबा है जिन लोगों ने ये दहशत गर्दी की इन वाक़यात की रूह में कि जी सुलह हो गई, उन्हें छोड़ देना ये मुल्क के साथ बेवफाई होगी। उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, उन लोगों को जिन्होंने परचम उतारा, उन लोगों को जिन्होंने लोगों पर गोलियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए, और उनकी सजाओं पर अमल दरामद होता नजर आना चाहिए। जिस तरह 9 मई के वाक़यात के बाद सजाएं की जा रही हैं, ऐसे ही इन वाक़यात के बाद भी ये सजाएं होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई हमारे इस प्यारे मुल्क को मुर्दाबाद और हमारी रियासत पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे कि यहाँ ये करने से सजाएं मिलती हैं, और वो सजाएं ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ बगल में जो उनके मुआवजे हैं वो दिए जाएं। वहाँ के एक मशर ने मुझे बताया कि वहाँ उन्हें बुलाकर कहा गया 20 लाख रुपया ले लो और लाकर लोगों में तकसीम कर लो। उसने कहा 20 लाख का तो एक मकान चला हुआ है, तुम 20 लाख में मुसलमानों को खरीदना चाहते हो? उनके घरों की तामीर, उनके दुकानों का नुकसान और उनके जानी नुकसान पर उनका मुआवजा उनको मिलना चाहिए, हमारा ये मुतालबा है। और जब तक वहाँ के स्टेक होल्डर मुतमईन नहीं होते, उस वक़्त तक हम मुतमईन नहीं होंगे। उन्हें मुतमईन किया जाए और इस जंग को ख़त्म करके वहाँ पर पुरअमन माहौल बनाया जाए। हमने पहले भी किरदार अदा किया, हम फिर भी किरदार अदा करेंगे। इस हवाले से हमें पारा चनार जाना पड़ा, कुर्म एजेंसी जाना पड़ा, बगन जाना पड़ा, दुशहरा जाना पड़ा। हम जाएंगे, वहाँ लोगों को अमन मोहब्बत की बात बताएंगे। इस मुल्क को बचाने के लिए हमें जो कुर्बानी देनी पड़ी हमने पहले भी दी, आज भी देते हैं और आइंदा भी देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमने रियासत से मुतालबा किया है और वहाँ की हुकूमत चूँकि इस वक्त ये मामला देख रही है, एपेक्स कमेटी ने जो फैसला किया है उनने भी ये किया है, लेकिन इन धरनों की वजह से शायद उनने ड्राफ्ट तब्दील किया है। हम उसे मानने को तैयार नहीं होंगे। हम चाहते हैं वही ड्राफ्ट हो और वही तरीका हो, सबसे पहले असलिया लिया जाए ताकि अमन हो जाए, फिर कोई जहाँ जाता है जाए और आए, अपना कारोबार कर सके। लेकिन आप भी समझते हैं कि असले के लिए बगैर अमन कायम होना मुमकिन है, ये हो नहीं सकता। मैं एक बार फिर अपने कराची की आवाम का शुक्रिया अदा करने के बाद, इनको शाबाश देने के बाद, कराची भर में होने वाले अपने तमाम धरनों के ख़त्म होने का ऐलान करता हूँ और अपने दोस्तों से और अवामी धरनों में आने वाले लोगों से कहता हूँ, आप अपने अपने घरों में मुतमईन होकर जाइए। और फिर एक बात दोहराता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता किसी ने फिर मुल्क दुश्मनी के लिए ऐसे धरने बिठाने की कोशिश की, तो हम पहले 60 मकामात पर थे, अब इस मरतबा हम 100 से ज़ायद मकामात पर इंशाअल्लाह धरने देकर मुल्क को, शहर को और बदअमनी को और मुल्क के दुश्मनों का रास्ता रोकेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
लगाए पाकिस्तान 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 जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। पानी दिया।